Dear student, new aspirant who are planning to take the chemistry optional for CSE and Indian Forest Services and who already taken this and preparing with chemistry optional. Now we already discussed the planning and strategy for paper 1. Now paper 2. Now today we will discuss the planning and strategy for paper 2. And for any planning, we need the syllabus. Thorough syllabus. What is the thorough syllabus? And what is the contribution of its syllabus? That is, a proper planning can fetch as good as marks. Like Truraj Singh Solanki, 21st rank this year. Now 174 marks in paper 2. Dipesh Kedia, 2018, 36th rank. 182 मार्क्स। अगर 300 पहुंचाना है तो इस पेपर में आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। इस पेपर में अगर आप अच्छा नहीं करते तो आपको 300 पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक, नाउ पेपर टू सिलेबस, दैट इज एरोमेटिसिटी, study of reaction mechanism, substitution reaction, elimination reaction, addition reaction, rearrangement, named reaction, pericyclic, photochemistry, reagent, polymer and spectroscopy। ये हमारा टोटल सिलेबस है। एंड नाउ अगर हम देखें तो एरोमेटिसिटी का जो कंट्रीब्यूशन है यहां से यहां तक रीअरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा हमारा जो है स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। इसमें यूनिट डिवीजन बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज होल सिलेबस इज इंटरलिंक। सारा सिलेबस इंटरलिंक्ड है। लेकिन एरोमेटिसिटी 2013 में 0 नंबर का है, 2014, 15 10 नंबर का है, 2016, 17, 20 नंबर, 2018, 2019 25 नंबर, 2020 10 नंबर, 2021 15 नंबर, 2022 10 नंबर, 2023 20 नंबर। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 से 20 नंबर हमेशा रह रहा है और ये कंपलसरी में आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कंपलसरी क्वेश्चन 1 में आता है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन दिस टॉपिक वी आल्सो refresh our foundation, that is electronic effect, steric effect, their importance in organic chemistry. Thereafter come the very broad section, study of reaction mechanism, intermediate, substitution reaction, elimination reaction, addition reaction and rearrangement। A very broad section called as reaction mechanism, reaction mechanism, reaction mechanism, reaction mechanism। Now reaction mechanism is the heart and brain of heart and brain of heart and brain of overall paper 2।
A good command in reaction mechanism make you easy in named reaction, reagent and polymer. तो पहले आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना चाहिए। अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पहले करते हैं और नेम्ड रिएक्शन बाद में करते हैं तो हमको टाइम आधा लगेगा, क्योंकि रिपीटेशन है। और रिएक्शन मैकेनिज्म, वन हु कमांड रिएक्शन मैकेनिज्म विल कमांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन हु कमांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल कमांड पेपर 2 in UPSC CAC, and one who command paper 2 in UPSC CAC will command optional, and one who command optional will command the selection. तो आपका सिलेक्शन जो है वो ये रिएक्शन मैकेनिज्म पे आके रुक गया। रिएक्शन मैकेनिज्म पे आपको टाइम देना है और इसका 4 पार्ट, 5-6 पार्ट में डिवीजन है। स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जिससे कि 2014, 2015, 2018, 2021, 2023 में आया है। 2014 में 15 नंबर, 2015 में 10 नंबर, 2018 में 10 नंबर, 2021 में 10 मार्क्स, 2023 में 10 मार्क्स। मतलब 10 से 15 का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रेगुलर नहीं है। लेकिन जैसा कि हम कहे हैं कि ये टॉपिक है कि यहाँ जो है आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरलिंकिंग है। आपको ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है, इसी ऑर्डर में पढ़ना। नाउ इंटरमीडिएट वेरी रेगुलर, दैट इज 15 मार्क्स, 2013, 2014 30 marks, 15 50 marks, 16 50 marks, 17 50 marks, 18 25, 19 10 marks, 20 50 marks, 21 50 marks, 22 40 marks, 23 50 marks. That means a very regular trend, a very regular trend of as low as 10 marks to as high as 50 marks. Substitution reaction, the most important section. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक हम यूनिट 1 मानते हैं। वैसे मैंने कह दिया है कि इसमें यूनिट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 35 in 2013, 14 30 marks, 15 20 marks, 16 40 marks, 17 40 marks, 18 55 marks, 19 40 marks, 20 35 marks, 21 20 marks, 22 40, 23 45. That means a low contribution of 20 marks to as high as 55 marks. Elimination reaction, it is a very small topic but very regular. अगर हम देखें एलिमिनेशन का तो 2015 को छोड़ के बाकी सब में आया है। However low contribution, 2015 20, 2013 20 marks, 14 30 marks, 16 20 marks, 17 20 marks, 18 10 marks, 19 35 marks, 20 15 marks, 21 35 marks, 22 23 10 and 20 and 10 marks. A exception of year 2014 and 19 and 21, we can say that 10 to 20 marks is regular contribution, minimum, maximum 35 तक जाता है। And this topic is very small topic and very sure shot. ऐसे टॉपिक का हम पेपर 1 में भी बोले थे कि सम्मान करना चाहिए। Now addition reaction, most broad section, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, माइकल एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन। और इसमें हम 4 रिएजेंट भी पढ़ते हैं।
ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, KMnO4, MCPBA, डाइबोरेन। ठीक, तो ये टॉपिक रीएजेंट के साथ ओवरलैपिंग है, रीएजेंट के साथ ओवरलैपिंग है। ये देखिए 65 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, 17 55 मार्क्स, 18 30 मार्क्स, 19 20 मार्क्स, 20 40 मार्क्स, 21 30 मार्क्स, 22 15 मार्क्स एंड 23 20 मार्क्स। ठीक, ये देखिए 65 मार्क्स एडिशन रिएक्शन, 65 मार्क्स। नाउ reagent only 20 marks. ठीक, 25 marks reagent 40 marks. 2015 25 marks reagent 45 marks. 20 marks 16 में reagent 35 marks. In 17 addition reaction 55, reagent only 15 marks. In 18 30 marks, 25 20 marks 35 marks reagent, 40 marks 25 marks, 30 marks 30 marks. तो whenever एडिशन रिएक्शन से जब कम आता है तो रिएजेंट से ज्यादा आता है, क्योंकि ओवरलैपिंग टॉपिक है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ना। ठीक, एक साथ करने में फायदा है आपको कि अगर इससे कम आता है तो उससे कंपनसेट होता है। नाउ रीअरेंजमेंट 36 मार्क्स, 35 मार्क्स 2015 में, 2016 में 40 नंबर, 2017 in 17 10 marks, 18 10 marks, 19 30 marks, 20 10 marks, 21 20 marks, 22 20 marks, 23 20 marks रीएजेंट से। इंटरमीडिएट को देखिए 36 मार्क्स रीअरेंजमेंट ओनली 15 मार्क्स इंटरमीडिएट, 0 मार्क्स 30 मार्क्स, 50 मार्क्स रीअरेंजमेंट 35 मार्क्स, 50 मार्क्स 40 मार्क्स, 50 10 25 10 10 30 मार्क्स, 50 मार्क्स रीअरेंजमेंट 10 मार्क्स, 50 मार्क्स 20 मार्क्स, 40 मार्क्स 20 मार्क्स, 15 10। अगर हम 1-2 साल को रीअरेंजमेंट का ओवरलैपिंग टॉपिक है आपका इंटरमीडिएट और रीअरेंजमेंट को एक साथ पढ़ना, क्योंकि अगर हम कुछ एक सेक्शन को छोड़ दे तो अगर इंटरमीडिएट से कम आता है तो उसका कंपनसेशन कहाँ है, रीअरेंजमेंट से ज्यादा आता है, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन से रीअरेंजमेंट भी कई होते हैं। रीअरेंजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, कार्बीन इंटरमीडिएट, ये सारे रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व है। तो इसका ओवरलैपिंग टॉपिक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम रिएक्शन मैकेनिज्म से 120 से 140 नंबर आता है, 120 से 140। आप देख लीजिए, कोई भी ईयर रैंडमली उठाइए, 23 को उठाते हैं, 23 में अगर हम देखें तो 10 15 25 25 एंड 45 दैट इज 70 80 100 120 मार्क्स। ठीक, 40 40 80 40 40 80 100 115 and 135 7 60 80 145 2021 में 145 and 20 165
Now, next is, that is 20, 85, 100, 150 marks. 150 marks. Now, 19, 85 and 135 marks. In 18, it is 900, 140 marks. Now, 17, it is 175 marks. In 16, it is 170 marks. 170 marks. Now, in 15, it is 60, 80, 80 and 140 marks. In 14, that is, it is 130 marks. In 2013, it is 170 marks total. 170 marks. तो अगर हम एक एवरेज लेकर चले तो 120 से 140 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन है, और इसका लिंकेज हर जगह है, नेम्ड रिएक्शन में है, रीएजेंट तो आपको बताया ही, ओवरलैपिंग है इसके साथ, एडिशन रिएक्शन के साथ, रीअरेंजमेंट ओवरलैपिंग है इंटरमीडिएट के साथ. तो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इज reaction mechanism is very strong, and that's why it is called as heart and brain of organic chemistry. That is paper 2. तो give time, 1 महीना 1.5 महीना अच्छे से टाइम इस पे दीजिए. हम तो टोटल मतलब इस पे 1 महीने से ज्यादा टाइम देते हैं. आप समझिए कि 2.5 महीने के सिलेबस में 1 महीने से ज्यादा टाइम हम रिएक्शन मैकेनिज्म को देते हैं. आप भी बोर हो जाते हैं इसकी, सर इतना रिएक्शन मैकेनिज्म है, सिलेबस कैसे खत्म होगा? रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होते ही सिलेबस खत्म हो जाता. नाउ, नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में टोटल 18 नेम्ड रिएक्शन है. नेम्ड रिएक्शन का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है. 2013 में 44 मार्क्स, 14 में 25, 15 में 35, 16 में 30, 17 में 35, 18 में 5 नंबर से, 19 में 55, 20 में 15, 21 में 15, 22 में 50 नंबर और 23 में 10. मतलब 18 नेम्ड रिएक्शन है, आप आराम से क्रैप्स कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये आपका जो है ये टॉपिक बिल्कुल इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल है. वैसे जैसा कि हम कह दिए कि ऑर्गेनिक में कुछ भी इंडिविजुअल नहीं होता. ओवरऑल सिलेबस इज लिंक्ड. एरोमेटिसिटी इज फर्स्ट टॉपिक एंड एविडेंस ऑफ एरोमेटिसिटी इज बेस्ट एविडेंस ऑफ एरोमेटिसिटी इज ड्यू टू NMR, which is our last topic. तो ऊपर से नीचे तक होमोजीनियसली लिंक्ड है, ये सर्कल है. तो बट अगर हम देखें तो कहीं इसका ओवरलैपिंग नहीं, तो इसलिए हमको इसको इंडिपेंडेंट मानते हैं. और कम से कम आपको 15 से लेकर एज हाई एज 55 तक का कंट्रीब्यूशन, हम एक एवरेज 30 नंबर मान सकते हैं. 25 to 30 मार्क्स इस टॉपिक का कंट्रीब्यूशन है. नाउ कमिंग टू पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री. ये दोनों टॉपिक आपको एक साथ पढ़ना चाहिए बिकॉज दे आर लिंक टॉपिक. इनकी लिंकिंग है और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होगा. फॉर BSc BTech स्टूडेंट इट इज ए न्यू टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ in
13 30 मार्क्स, फोटो केमिस्ट्री से 0 नंबर। इन 14 65 मार्क्स, दोनों को मिला दे तो। इन 15 65 मार्क्स, दोनों को मिला दे तो। इन 16 it is 60 marks. In 17 85. In 18 it is 80 marks. In 19 it is 40 marks only. In 20 it is 95 marks. Or in 21 it is 65 marks. In 22 it is 50 marks. In 23 it is 80. दो तीन बातें हमको इस दो टॉपिक के बारे में कहना है। पहला, मार्क्स सिक्योरिंग है। जिस साल फोटो पेरी से कम आता है उस साल केमिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 में कम नंबर आते। अगर केमिस्ट्री ऑप्शनल में आपको 150 प्लस करना है तो फोटो पेरी करना ही होगा, है ना। फोटो पेरी करना ही होगा तभी। और जिस साल फोटो पेरी से कम आता है उस साल आपको हम मार्कशीट दे देंगे, आप एनालाइज कर लीजिएगा हर ईयर का। ईयर कौन कौन से साल कम आया है। 19 में कम आया है, ठीक, 40 नंबर का केवल आया है। और कब कम आया है? 13 में कम आया है, ठीक। और कब कम आया है? 19 और 13 में। और आया है कम इसमें 22 में। आप देख लीजिए ऑर्गेनिक का मार्क्स कम, पेपर 2 में मार्क्स कम आया है। इस साल 80 मार्क्स का आया है इन दोनों से मिलाकर। और ऑर्गेनिक का मार्क्स बहुत बच्चों को 150 प्लस आया, बहुत सारे बच्चों को आया। 2018 हम बता रहे हैं 80 नंबर का आया है। यही दीपेश केडिया का जो हम बता रहे थे 182 था। ये देखिए 80 मार्क्स का आया, 182 तक हाईएस्ट गया। और इस साल बहुत बच्चों को 2018 में 150 प्लस था। तो की ऑफ सक्सेस, अगर आपको 150 से ऊपर जाना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में फोटो केमिस्ट्री, सेक्शन ए में पेरीसाइक्लिक आता है। नाउ रीएजेंट के बारे में हम बता ही चुके हैं। ये ओवरलैपिंग है और काफी रेगुलर है। 20 40 35 35 15 25, 19 में 35, फिर 20 में 25, फिर 21 में 30, फिर 22 में 35, फिर 35। और अगर इसमें कम आता है तो एडिशन रिएक्शन में ज्यादा होता है। दोनों मिलाकर हमेशा 70 मार्क्स के आसपास होते हैं, ठीक। नाउ पॉलीमर, डोंट इग्नोर दिस। पॉलीमर इज ए स्मॉल टॉपिक, डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। इसको आप इग्नोर कर नहीं सकते, और इग्नोर करेंगे ही क्यों। 20-25 पेज पढ़ना है, उसी से आना है। और इसका कंट्रीब्यूशन देखिए तो 13 में 65, 14 में 60, 15 में 45, 16 में 30, 17 में 20, 18 में 7, 19 में 30, 20 में 25, 21 में 35, 22 में 25, 23 में 35। मतलब हम अगर इनको एक्सेप्शन मान भी लें 13 और 14 को, तो भी हमारा जो है इसका कंट्रीब्यूशन कम से कम भी 30 से 40 नंबर है। दिस इज ऑर्गेनिक। स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 1/4 है, और ये एक पेरी फोटो के बाद और रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद ये एक इन ब्लॉक टॉपिक है जो कि आपको मार्क्स लाएगा। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रो उसको कंपनसेट करेगा। और ये देखिए इसमें हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, जो कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, उसको भी पढ़ना है।
प्लस ऑर्गेनिक में एनएमआर, आईआर स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो आईआर स्पेक्ट्रा है, मास स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा, all are used for the purpose of the characterization। और इसका कंट्रीब्यूशन देखिए तो 2013 में 70, 14 में 70, 15 में 70, 16 में 55, 17 में 50, 18 65, 19 80, 20 80, 21 75, 22 95 and 23 100, 1/4 कंट्रीब्यूशन। अगर हम इन दोनों साल को एक्सेप्शन छोड़ दें तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो नियरली 1/4। और दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस थोड़ा सा पार्ट्स को, थोड़ा सा डाटा को मेमोराइज करना होता है। तो डाटा तो यूपीएससी की तैयारी में इतना मेमोराइज करते, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या? तो इसमें ये है। Now this is overall analysis with marks distribution. Now to be concluded, reaction mechanism is very important. That is the study of reaction mechanism to rearrangement, having a contribution of 120 to 140. Very important. हम 2-3 बार कह चुके हैं, it is heart and brain. Now यहाँ भी है पेरी फोटो केमिस्ट्री, 60 to 80 मार्क कंट्रीब्यूशन इज अनदर हॉट स्पॉट, जिस पे आप अटैक कर सकते हो, उससे मार्क्स ले सकते हो। पॉलीमर स्मॉलेस्ट टॉपिक कैनॉट बी ओवरलुक्ड बिकॉज इट हैज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 30 to 45 and a small topic. Now spectroscopy having consistent contribution of 1/4, कभी कभी कम हो जा रहा है, एंड स्कोरिंग कैनॉट बी ओवरलुक्ड। तो इन सभी टॉपिक्स को इन ब्लॉक पहले करिए, ठीक। यहां भी हम अगर देखें तो हमारे पास स्मॉलर टॉपिक्स भी हैं। स्मॉलर टॉपिक के ग्रुप में है एरोमेटिसिटी, ठीक, 13 रीअरेंजमेंट है, आप आराम से एक्सपर्टाइज कर सकते हो। नेम्ड रिएक्शन है, 18 नेम्ड रिएक्शन है, आप एक्सपर्टाइज कर सकते हो। पेरी फोटो, दे आर ऑल्सो ए स्मॉल टॉपिक, दे आर ऑल्सो ए स्मॉल टॉपिक। और पॉलीमर, ये भी स्मॉल टॉपिक है। और अगर इन स्मॉल टॉपिक्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम रैंडमली देखें, रैंडमली अगर हम इस साल देखें तो 20 है कि नहीं, 20, फिर रीअरेंजमेंट 40, नेम्ड रिएक्शन 50, 50 प्लस 130, 165, 165 किनका कंट्रीब्यूशन है? एरोमेटिसिटी, रीअरेंजमेंट, नेम्ड रिएक्शन, फोटोपेरी और पॉलीमर, 6 टॉपिक का, जो कि स्मॉल टॉपिक्स है। 13 नेम रीअरेंजमेंट एक्सपर्टाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा भाई? नेम्ड रिएक्शन 18, पॉलीमर बायोपॉलीमर, एरोमेटिसिटी स्मॉलेस्ट, और तो कुछ है नहीं।
हम तो एलिमिनेशन रिएक्शन को भी इसमें रख रहे थे, बट हम रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उसको बार बार इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो उसको इन ब्लॉक में ही रखने दीजिए। ठीक, कोई भी ईयर आप उठा लीजिए, 2023, ये देखिए 2016 उठा लेते हैं, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स यहां से है। फिर देखिए 40 नंबर रीअरेंजमेंट 60, नेम्ड रिएक्शन 30, 90, ठीक, 60 फोटोपेरी 150 मार्क्स, 180 मार्क्स। इन टॉपिक से आ रहे हैं, और इन टॉपिक्स में उतना ज्यादा आपको राइटिंग अप्रोच डालने की जरूरत भी नहीं। राइटिंग अप्रोच की जरूरत कहाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों में, इनमें राइटिंग अप्रोच का क्या जरूरत है? दे आर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। फोटोपेरी में एमओ डायग्राम बस बना दीजिए। तो इन टॉपिक्स को आप अगर अगर आप एक बार स्टडी कर चुके हैं, हम तो कहेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करिए। आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक अगर पढ़ चुके हैं, तो आप फिर रीअरेंजमेंट से बाईपास में ये टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पेरी फोटो हो गया, ठीक, रीअरेंजमेंट हो गया, नेम्ड रिएक्शन हो गया। जैसे ही आप एडिशन रिएक्शन पे पहुंचते हैं, रीएजेंट और पॉलीमर कर लीजिए, तो आपका जो है 2 वे सिलेबस चलेगा। एक तो ये स्मॉलर, एक तो बड़ा टॉपिक जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का साथ साथ चलता रहेगा, और एक आपका जो है वो चलता रहेगा स्मॉलर टॉपिक्स, दैट इज रिएक्शन, एरोमेटिसिटी, रीअरेंजमेंट, नेम्ड रिएक्शन, ठीक, रीएजेंट, ठीक, पॉलीमर, ये चलता रहेगा। ठीक, स्पेक्ट्रो आप बाद में कर सकते। तो ये एक स्ट्रेटेजी जो है आपको बहुत फायदा करेगा कम समय में पेपर 2 पे कमांड करने। So student, follow these steps, and chemistry optional is highly scoring option। हमेशा इसमें अराउंड 300 मार्क्स आते हैं, और 10 से 15 सिलेक्शन हर साल होते हैं। अगर हम IFOS को जोड़ लें तो ये 18 तक एवरेज पहुंच जाता है अभी। So it is good optional, all the best and start your preparation।